تو ایک ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو زمین پر آپ ایک سیکنڈ کے لیے پیر نہیں رکھ سکتے. ایسے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں بیک وقت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہوگا. وہ پین سہ کر ماں پیدا کرتی ہے, اور پیدا کرنے کے بعد میرا لال کہاں ہے وہ فکر رہتی ہے, اور اپنے سینے سے اس درد میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اگر وہ دودھ نہ پلائیں 3 دن تو بچہ بیچارہ معصوم وہیں دم توڑتا ہے. آپ کی ماؤں نے وہ درد سہ کر آپ کو پیدا کیا ہے, وہ درد میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے. وہ آپ کو دودھ پلایا اور آج آپ آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہو. آپ رلا رہے ہو اپنی ماں کو, وہ ماں کو رلا رہے ہو جس کی مثال اللہ لیتا ہے. اللہ کو کہنا ہے I love you بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بچے جب لڑکیوں کو بولتے ہیں تو لڑکی کتنی خوش ہو جاتی ہے. لڑکی جب ایک لڑکے کو بولتی ہے I love you تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے I love you. اللہ نے اب بلکہ لو لیٹر لکھا ہے انسان کو. وہ لو لیٹر کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ چاہتا ہے اس لیے اللہ نے یہ لیٹر لکھا ہے, یہ میسج دیا ہے پورے عالم کے لیے. اللہ نے یہ دیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں, کوئی جہنم میں جلتے رہیں. اللہ بے پناہ چاہتا ہے, اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں. تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے, تو کس کی مثال لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کر کے نہیں بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے, اور کتنے مشکلوں سے تجھے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے. آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آ گیا, دوڑنا کیا سیکھ گئے ہو آپ, سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو, جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو. آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو, والد کو ہی رلانے والے بن گئے ہو, ماں کو رلانے والے بن گئے ہو. 12 سال عمر نہیں ہے, ایک ڈبی سگریٹ پی رہے ہیں بچے. 7 سٹینڈرڈ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں. 8 سٹینڈرڈ کے بچوں کو ڈرگز میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے. درد ہوتا ہے, زندگی پوری تباہ کرتے ہیں. اور ایسے جو بچے سگریٹ, شراب, ڈرگز میں ملوث ہے وہ بیچارے شادی کرتے ہیں. ایک معصوم بچی بڑے خواب لے کر آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا, مجھے ایسی خوشی دے گا, مجھے ایسی زندگی دے گا. اس بیچاری کو کیا معلوم یہ روز 2 ڈبی سگریٹ پیتا ہے, اور روز ڈرگز لیتا ہے, شراب پیتا ہے. اور یہ جو روزانہ ڈرگز, روزانہ سگریٹ, روزانہ شراب پی کر آپ شادی کرتے ہو اور بچے پیدا کرتے ہو, اور بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. بعد میں بچوں میں, لنگز میں بچوں میں پرابلمز پائے جاتے ہیں, اور اپاہج بچے آپ پیدا کر رہے ہو, اور بچوں کو آپ تکلیف دے رہے ہو. وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے, اس کے سینے میں درد, اس کے لنگز میں انفیکشن, وہ سانس لینے میں شکایت. یہ کیوں؟ یہ جینیٹکس ہے کہ والد میں وہ تمام بیماریاں سینے میں دفن ہے, وہ چیز منتقل ہوتی ہے بچوں میں, اور کیسے آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں, آپ کے والدین نے آپ پر جتنا پیسہ خرچا ہے, آج رات آپ قسم کھائیے اس سے 1000 گنا زیادہ آپ اپنے والدین پر خرچیں گے انشاءاللہ. انہیں حج کرا کر, انہیں عمرہ کرا کر, ان کے حیات میں ان کے نام پر مسجدیں بنا کر, ان کے حیات میں یتیم خانے بنا کر, ان کی حیات میں سکولز بنا کر, ان کی حیات میں ان کے نام کے لائبریریز محلوں میں بنا کر آپ کو خوش کرنا ہے اپنے والدین کو. لیکن 12 سال میں یہ خواب کہاں ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں ایک کے ہوتے ہیں جس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اسی عمر میں گھر میں لائبریری سیٹ اپ کی تھی آپ نے. آپ کے گھر میں کیا لائبریری ہے؟ شیونا کے نوجوان یا 12 سال 15 سال کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں, کالج کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کتابیں ہیں؟ وہ اسکول کے کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ تو لازم سب کے یہاں ہوتی ہیں. ہسٹری کی کتابیں ہیں. میں حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب سے ان دنوں بہت ٹریول کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ بتائے تھے جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ انڈیا کی ساری ہسٹری پڑھ چکے تھے. ایک غلطی کی ہے, IAS کا ایگزام نہیں لکھے آپ. وہ لکھتے ہیں تو آج ایک عالم دین, ایک IAS آفیسر بھی ہوتا ہے.
12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ, और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए मुझे, हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए, हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा। ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है, फिक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या, मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदे में ये कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हजारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा, तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं, और रेवोल्यूशन याद रखें कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है, और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है। और यहाँ आज तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने। और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे, ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलौज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के 2 बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है, कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूँ, और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है,
और आप बड़े भूखे हैं और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है और कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर, तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी वॉशिंग पाउडर निरमा से धोया, क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं, भूखा मर जाऊं, लेकिन वो चीज छूऊंगा नहीं। तो एक दफा आपने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस जुबान से कई दफा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जुबान से अल्लाह इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस जुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी जुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये जेब देता है? एक जुबान पर दरूद और उसी जुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज आप। सवाल ही नहीं है। एक दफा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूं, जितने खवातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने जिंदगी में एक दफा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस जुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफा हम गाली देते हैं। चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस जुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं एक 30 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है। ये चमकते फोन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपके हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूंगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊंगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह सबके हाथों में फोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फोन है, लेकिन किताबें नहीं होती है। बिना फोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फोन का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन याद रखें फोन को स्मार्टली यूज करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे। वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान जिंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको जरा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा
10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज इतना परेशान होकर उनकी जिंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूं कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे, एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस जुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नज़दीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज़ होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ है, वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफ़ी तलब करें, उनकी दुआएं लें और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए ठान लें। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूं कि यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से डॉक्टर्स, यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम, यहाँ से उलमा, यहाँ से मुफ्तियान, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस बने। और मैं सलाम करता हूँ मकतब मोहम्मदिया को कि ये 250 बच्चों पर ज़बरदस्त यहाँ काम कर रहा है माशाअल्लाह। और इस टीचर के जानिब से आपके मकादिब को मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ। वो आप यहाँ के बच्चों में कुरान पढ़ाने में वो पैसा इस्तेमाल करें। और मैं खुश नसीब समझता हूँ आप इस छोटे से डोनेशन को एक्सेप्ट करें और वो पैसा कुरान ख़रीदने में, कुरान पढ़ाने में इस्तेमाल करें, तो मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब का, मौलाना मोहसिन साहब का और ये प्यारे नौजवान बच्चे और वालिदैन, ख़वातीन और जो 10 किलोमीटर से जो जोश वाले जो नौजवान थे, उनको इस बंदे का सलाम। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे मुक़द्दर में फिर यहाँ आना हो तो फिर कभी आऊँगा और इंशाअल्लाह और भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच।